Hello student, this is the seventh chapter of history. Chapter name is New Ideas of Social Beings. In this chapter we discuss about the social status of later Vedic period, Upanishad, Jainism, Buddhism, as well as we discuss about the lives of Lord Buddhas and Lord Mahavira. Student, in this previous chapter we discuss about the Vedic period. In the Vedic period we discuss about the how the created the four Vedas and they established the new method of life. But in the later Vedic period, the started some corrupt practice in the societies, especially Vedic societies, and this gave a way for started a new ideas, means the new other religions, means Buddhism and the Jainism. Then first we discuss about the later Vedic period, then after we discuss one by one Buddhism and Jainism. The later Vedic period. In the later Vedic period, the Brahmins and had acquired a very important position in the society. They were the dominating every aspect of life of people. They retained education as their the birthright and thus exploited the simplicity and the innocence of पीपल्स. यानी देखा जाए तो लेटर वैदिक पीरियड में जो होता है कुछ करप्ट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि ब्राह्मण्स जो है वो सोसाइटी में डोमिनेट करने लगते हैं और एक तरह से जो एजुकेशन हो या अदर्स जो भी रिलीजियस वर्क्स है वो उनका अपना एक तरह से बर्थ राइट हो जाता है जिससे कि अदर्स जो पीपल होते हैं स्पेशली द लोअर स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि देखा जाए जो अदर्स लोग थे यानी आम लोग थे वो धीरे धीरे करके जो हिंदू रिलीजन है वैदिक रिलीजन्स है उससे दूर होना स्टार्ट होते हैं. इन द सेम टाइम द न्यू religion also established in the Indian society in Indian subcontinent. The first is we discuss Jain religions यानी Jainisms. देखा जाए तो लॉर्ड महावीरा he said to be the founder of the Jain religions. Although the Jain believe that the philosophy of Jainism is as old 3000 BCE at their reference of other guru means तीर्थकर्स. इन द वेदास ऑल्सो डिस्क्राइब यानी देखा जाए लॉर्ड महावीरा जो थे वो एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं बट इसके अलावा भी जैन जो होते हैं उनका ये विश्वास है कि ये जो जैनिज्म या जो फिलोसफी है ये लगभग 3000 BC ईयर्स एगो है. और देखा जाए इसमें डिफरेंट गुरुज यानी जिनको तीर्थकर कहा जाता था इनको डिस्क्राइब किया गया है वेदास में भी. But the formulations of the religions that started by the 24th तीर्थकर लॉर्ड महावीरा. पर देखा जाए जो एक्चुअल जो रिलीजन ये स्टार्ट होता है इनके 24 तीर्थकर के गुरु थे लॉर्ड महावीरा के थ्रू. दिस इज द स्टैचू ऑफ लॉर्ड महावीरा. पर ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म में 24 तीर्थकर या गुरु हुए जिसमें फर्स्ट जो थे वो ऋषभ देव थे. उसके बाद देखा जाए तो 23rd जो थे तारकेश्वरनाथ द पार्श्वनाथ ऑफ द 24 तीर्थकर एंड 23rd तीर्थकर एंड देन आफ्टर 24 तीर्थकर लॉर्ड महावीरा. देन स्टूडेंट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड महावीरा. लॉर्ड महावीरा इज सेड बी ए फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन. ऑल्दो द जैन बिलीव दिस फिलोसफी Jainism is old 3000 BCE. Therefore, the reference of other group. But actually started by Jain religion by 24th Tirthakar Lord Mahavira. Let us we discuss the life of the Lord Mahavira. Lord Mahavira was born in 599 BCE. His Kshatriya Kunda was a part of the Vaisali Republic. He was son of the Siddhartha as his mother name was Queen Trishala. They were very religious people and were the follow the Lord Parshvanath. At birth he was named वर्धमान. यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 599 BC में क्षत्रिय कुंड नियर वैशाली रिपब्लिक में. देखा जाए इनके फादर जो थे किंग थे और इनके पिता का नाम सिद्धार्थनाथ था और मदर नाम क्वीन त्रिशला. ये चाइल्डहुड से ही बहुत ही रिलीजियस पीपल थे और साथ साथ ये लॉर्ड पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थ करते जैन रिलीजन्स के उनको वो फॉलो करते थे. एट द बर्थ हिज नेम वर्धना. बचपन में इनका नाम वर्धमान था. He was very courteous and one day when he was the young saved his friend from the snake while playing the ad said that the fearlessness and bravery earned him the title of Mahavira. यानी बचपन से बहुत बहादुर थे. एक समय वो अपने फ्रेंड अपने दोस्त को सांप
के काटने से बचाते हैं, जिससे कि उनका नाम महावीरा से उनको बुलाया जाता है। महावीर जो कि एक राजा फैमिली में जन्म हुआ था, जिससे कि उनका जो लाइफ था एज ए प्रिंसेस लाइफ के रूप में, एक लग्जरियस लाइफ में वो रहते थे, पर इस लाइफ से उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। जैसे दे रहा है, ऑल्दो ही वाज द बॉर्न ए प्रिंस, he started to live a simple life very early. His life was, and did not have any liking for the material things. He quit the material world and started living like a monk. यानी देखा जाए वो अपने जो एक राजकुमार या राजा की फैमिली से थे और उनके जो जीवन थी बहुत ही लग्जरियस था, पर इस लाइफ से उनको कोई उतना अटैचमेंट नहीं था, जिससे कि आगे जाकर वो अपने जो राज फैमिली है उसको छोड़ देते हैं और एक साधु की तरह रहना स्टार्ट करते हैं। महावीरा डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू प्रीचिंग द eternal truth of the spiritual freedom to people around India. He traveled wide, enduring the harshest of climates, meeting people from walk to life, rich and poor, reachable, untouchable, who came to listen to his मैसेज। यानी वो अपने जिंदगी, अपने जो बाकी के लाइफ्स जो थे वो प्रीचिंग यानी उपदेश देने में, अपने धर्म के प्रचार में ही बिता दिए। वो पूरे भारत में जो पूरे सब कॉन्टिनेंट है वहाँ वो घूमते रहे और अपने जो लाइफ जो मैसेज है, जो इनलाइटमेंट है, उसको वो दुनिया को बताते रहे। स्पेशली वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी थे और वैदिक रिलीजन्स में जिस तरीके से करप्शन था उसके अगेंस्ट भी इन्होंने लोगों को उपदेश दिया। महावीरास टीचिंग की बात करते हैं तो उनके सम फिलोसफी है जिसको कि जानना इम्पोर्टेंस है। फिलोसफी मीन्स द लेसन ऑफ द महावीरा। दे रहे द लॉर्ड महावीरा प्रीच द नेसेसिटी ऑफ फर्स्ट राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथफुलनेस। यानी महावीरा का ये जो प्रीच था, जो लेसन था, उसमें उन्होंने ये कहा कि सही सोचिए, सही नॉलेज रखिए, सही व्यवहार कीजिए और साथ साथ देखा जाए तो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया। साथ साथ देखा जाए तो हमेशा ही सत्य की खोज में रहिए। यानी उनका जो प्रीच था कि एक तरह से अपने लाइफ को बहुत ही सिंप्लिसिटी जिए और ऐसा कोई काम ना करे जिससे किसी और को कष्ट हो। द डिक्लाइन ऑफ द जैन रिलीजन। द महावीरा की जो डेट होता है वो 72 ईयर्स में 468 BCE इन राजगृह पावापुरी नाम का एक जगह होता है जहाँ पे उनकी मृत्यु होती है। यानी 72 साल की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी नाम का एक जगह है जहाँ उनकी डेथ होती है। और इसके बाद ही देखा जाए उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसको उनके जो रिलीजन्स को आगे बढ़ाते हैं, पर सब्सिक्वेंटली देखेंगे धीरे धीरे करके ये रिलीजन्स खत्म होते हैं। जैसे दे रहा है द डिक्लाइन ए फ्यू सेंचुरी आफ्टर महावीरा निर्वाणा, यानी डेथ, यानी उस समय जो डेथ होते थे उनको निर्वाणा के नाम से जाना जाता था। द रिलीजियस प्रोसीजर बिकेम ए मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जो रिलीजन प्रोसेसेस थे जैनिज्म में मोर देन मोर कॉम्प्लेक्स होने लगे। सम सेकेंड जनरेशन फेल्ड वाज द प्रैक्टिकल्स एंड द डिफिकल्ट टू लिव द वर्ल्डली अफेयर एंड द मेटेरियलिस्टिक्स लाइफ। यानी आगे जाके लोगों ने ये देखा किस तरीके से एक तरह से मॉन्क के रूप में रहना या इन पार्टिकल्स लाइफ को जीना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको यही लाइफ को चलाना है तो हमको मटेरियल्स लाइफ को साथ ही चलना पड़ेगा। तो एट लास्ट धीरे धीरे करके जैन रिलीजन्स के जो फिलोसफी थे वो लोग उनको छोड़ना शुरू किया, यानी धीरे धीरे करके जैन रिलीजन डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। Next we discuss about the Buddhism. Buddhism is the another religion which came into the extent around 2500 years ago, nearly at the same time as Jainism. Upanishad. Buddhism was started by Gautama Buddha as the son of the 6th century BC. यानी इसी के टाइम में, इसी आसपास में बुद्धिज्म स्टार्ट होता है 6th century BC के आसपास, जिसको गौतम बुद्धा स्टार्ट करते हैं। Then we discuss about the life of Gautam Buddha. Early life of the Gautama Buddha. Siddhartha Gautama was born at the 583 BC at the Lumbini now in Nepal. His father King the Suddhana was a leader of large clan called the शाक्य। यानी देखा जाए लॉर्ड बुद्धा का जन्म जो था वो नेपाल के लुम्बिनी नाम के जगह में 583 BC में हुआ था। इनके पिता जो थे शाक्य क्लेन के किंग थे, इनका नाम सुद्धोधना था एंड इसकी जो माता थी वो महामाया के नाम से जाना जाती थी। हिज मदर क्वीन महामाया डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ। उनकी जो मदर थे उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही डेथ हो जाता है। When the Siddhartha was very few days old, the holy man the predicate that prince would be either be a great or great spiritual
टीचर, यानी जब वो बचपन में उनको किसी मॉन्क ने एक तरह से प्रेडिकेटेड ने बताया कि आगे जाकर ये बहुत बड़े रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचर्स बनेंगे। King Suddhodana wished that the son became a great king. He tried to keep the princess away from the religious and any sight of the suffering raised him in the great luxurious. यानी जो किंग सुद्धोधना थे वो ये चाहते थे कि उनका बेटा यानी बहुत बड़ा वो किंग बने, इसीलिए उनको बहुत ही लग्जरियस लाइफ बचपन से ही जीते हैं। बट द किंग गॉट सिद्धार्था मैरिड टू ए गर्ल कॉल्ड यशोधरा। उनकी शादी भी होती है जिनकी यशोधरा नाम की एक प्रिंसेस से। लेटर दे हैड सन whom they named राहुल, और आगे जाके उनके एक सन भी होते हैं जिनका नाम राहुल रहता है। द फोर पासिंग साइड बट इन द लाइफ ऑफ द एज ऑफ 29 द विथ महावीरा एक्सपीरियंस द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी देखेंगे सिद्धार्था जो थे वो अपने लाइफ के 29 एज में वो बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आते हैं। दे रहा है द सिद्धार्था रीच द एज ऑफ 29 विद द little experience the world outside wall of the places. One day he the overcame with his the asked to take him the ride through the country side, यानी एक दिन वो अपने सारथी के साथ बाहर घूमने निकले। On his journey he was shocked at by the sight of an aged man, this sick man and the dead body, और उनको तीन चीजें दिखाई देती हैं। पहला तो एक ओल्ड मैन, एक बीमार आदमी, और दूसरा एक डेड बॉडी। इन तीनों को देख के उनके जो लाइफ्स हैं वो टोटली चेंज हो जाता है। देन आफ्टर ही लेफ्ट होम एंड स्टार्टेड मूविंग फॉर इनलाइटमेंट द इनिशिएशंस, यानी जब वो बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आते हैं वो देखते हैं कि लाइफ क्या है, एक तरह से एट लास्ट एंड होगा ही। जिंदगी में इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जस्ट दैट्स दे स्टार्टेड टू फाइंडिंग इनलाइटमेंट, यानी वास्तविक जो सत्य है, वास्तविक जो सत्य की खोज में वो निकलते हैं। दे रहा द प्रिंसेस रिटर्न टू प्लेस बट ही वॉज ए चेंज मैन। वन नाइट ही लेफ्ट फॉर द प्लेस, सेव हिज हेड एंड चेंज ए प्रिंसेस क्लॉथ फॉर ए बेगर्स रॉब्स। देन ही बिगेन टू क्विस्ट फॉर इनलाइटमेंट, यानी एक रात वो अपने घर छोड़ने का वो निर्णय लेते हैं और 29 एज में वो अपने फैमिली को छोड़कर एट लास्ट वो इनलाइटमेंट की खोज में निकल जाते हैं। आफ्टर सम years wandered, Siddhartha founded the actual enlightenment. They are Siddhartha having traveled over vast areas, reached Gaya in present day Bihar, where he is the bent people trees and they started meditation. Attended enlightenment and came is known as the Buddha's to learn one, and that why his tree is known as the Bodhi tree. यानी देखा जाए तो कई सालों के घूमने के बाद वो बिहार के जो गया नाम की जगह पहुंचते हैं जहां पर एक पीपल के ट्री के नीचे उनको मेडिटेशन के थ्रू इनलाइटमेंट मिलता है। तब से उनको बुद्धास के नाम से जाना जाता है। इज द ट्री ऑल्सो नो बोधि ट्री, और ट्री को बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। देन स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लॉर्ड बुद्धा का जन्म जो लुम्बिनी में होता है। एट लास्ट वो 29 एज तक वो अपने फैमिली को छोड़कर एट लास्ट वो इनलाइटमेंट के लिए वनरेड करते हैं। फाइनली उनको इनलाइटमेंट मिलता है गया, प्रेजेंट टाइम द बिहार गया एट द ट्री ऑफ पीपल द प्रीचर्स। At the first, Buddha was the eloquent the preach. After his enlightenment, went to Deer Park at the Sarnath near Banarsi, present Uttar Pradesh. There he found the 5 companions had abandoned him, and there the priest is the first sermon. देखा जाए तो बुद्धास ने अपने फर्स्ट प्रीच देते हैं सारनाथ नियर बनारसी, प्रेजेंट बनारसी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। द टीचिंग, the sum of the fundamental of the teaching attributes the Gautam Buddha are that pain in the part of life and extent, means the right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort and mindfulness. यानी देखा जाए तो वो सेम लाइक इज द महावीर, ही ऑल्सो गेव द सेम लेसन, मीन्स द राइट व्यू, सही सोचिए, सही ध्यान रखिए, सही बोलिए एंड सही वर्क कीजिए, राइट लिवलीहुड यानी जीवन के जीने के लिए भी सही काम कीजिए, एंड दैट्स क्रिएट द पॉसिबिलिटी एंड द चेंज द life. Means according to Mahavira,
दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, दैट इट शुड नॉट बी ट्रीट टू अदर विथ डिग्निटी। यानी देखा जाए तो सभी लोग क्या बराबर है, सबको एक बराबर समझना चाहिए। वी शुड बी काइंड एंड जेंटल एवरीवन इंक्लूडिंग एनिमल्स, हमको सभी के साथ एक दया का भाव रखना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो। वी शुड हैव एवरीथिंग इज द मॉडरेशन एंड द नॉट बी ग्रीडी, हमको लालच नहीं रखना चाहिए। वी शुड बी डीड्स एज आवर एक्शन इफेक्ट इज नॉट ओनली द प्रेजेंट लाइफ बट ऑल्सो द नेक्स्ट लाइफ, यानी हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमको प्रेजेंट लाइफ तो सही हो, साथ साथ जो हम नेक्स्ट लाइफ हो, आगे अगला जन्म हो, वो भी सही हो। The books. The teaching of Lord Buddha are written in the Pali language and collection of this teaching are known as the Tripitakas. जो लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स है यानी लाइफ है उसको डिफरेंट बुक्स में लिखा गया है जिसको कि त्रिपिटिकास के नाम से जाना जाता है, जिसको कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। स्प्रेड ऑफ द बौद्ध रिलीजन्स, basically Buddhism preached the path of the practice and spiritual development is the given the insight into the truth of लाइफ, यानी लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग है एक तरह से सत्य की खोज के लिए, लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ के डेवलपमेंट के लिए है। विद द रियलिस्टिक द बेसिक बुद्धिज्म टुडे इज वन ऑफ द मेजर रिलीजन ऑफ द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी देखा जाए तो बौद्धिज्म स्प्रेड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि सेंट्रल एशिया है, श्रीलंका है, तिब्बत है, चाइना, कोरिया और जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया। Then student, in this chapter we discuss about the social status and the religious status of India after Vedic period. We also discuss about the life of Mahavira, teaching of the Mahavira, as well as we discuss about the life of the life of Lord Buddhas and the teaching of Lord Buddhas. Next we discuss about the exercise portion. The exercise portion means the complete exercise, true fulfilling the blanks and question answer and submit. Then thank you.